Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with trigonometric functions of particular angles for chapter 2 trigonometry part 1 of M1 of standard 11. अब देखो पिछले कुछ वीडियोस में हम देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर दी एंगल्स इन क्वाड्रेंट, जिसमें हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के तीन एंगल्स देखे थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंगल. ओके, फिर हमने सेकंड क्वाड्रेंट के तीन एंगल्स देखे थे 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री. ओके, देन थर्ड क्वाड्रेंट के भी हम तीन एंगल्स के मेजरमेंट के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख चुके हैं और वो थे 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री. नाउ इन दिस वीडियो we will study the trigonometric functions for the angles of fourth quadrant, और उसमें तीन स्पेसिफिक एंगल्स हैं 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री, और उसमें भी हम 330 डिग्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे. ओके, नाउ सी द गिवन एंगल इज 330 डिग्री और 11 पाई बाय 6 रेडियन. ओके, यू नो द टोटल प्रोसेस. सबसे पहले हम लिखेंगे कंसिडर ए स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल with center origin having x coordinate 0, y coordinate 0. Major angle XOA here is 330 degrees. ये देखो XOA ये एंगल 330 डिग्री है. Its terminal arm ray OA intersects circle at point P whose x coordinate is x, y coordinate is 1. ओके, फिर इस P पॉइंट से हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ PM perpendicular on x axis. Therefore length of OM is x, length of PM is y. Okay, then OP is radius of unit circle. Therefore, length of OP is 1 unit. अब देखो, one complete rotation is 360 डिग्री, और यहां पर one complete rotation यानी क्या? तो मेजर एंगल XOA प्लस मेजर एंगल POM. दिस मेजर एंगल XOA प्लस मेजर एंगल POM, ये दोनों मिला के कंप्लीट रोटेशन हो रहा है. उसमें से मेजर एंगल XOA is 330 डिग्री, therefore 330 डिग्री प्लस मेजर एंगल POM is 360 डिग्री, and therefore मेजर एंगल POM is 360 degree minus 330 degree. So this major angle POM is 30 degrees. Okay, इसे वन नाम दे दो. अब देखो, in right angled triangle PMO, angle PMO is 90 degree. This is by construction. Then angle POM is 30 degree. This is from 1. Therefore, this remaining angle OPM will be 60 degree, remaining angle of the triangle. Okay, therefore triangle PMO is 30, 60, 90 triangle. Okay, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा. अब देखो, अकॉर्डिंग टू 30, 60, 90 ट्राइंगल थ्योरम, द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री का एंगल विल बी √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज. मतलब OM will be √3/2 times the hypotenuse OP, side opposite to 60 degree का angle. Okay, and what is OM? It is x. √3/2 into 1.
सो x इज √3/2. उसके बाद this PM is side opposite to 30 degree, therefore it is half of hypotenuse. PM is nothing but y is half into OP is 1, so y is half. But this point P lies in fourth quadrant, and in fourth quadrant x is positive but y is negative, therefore x तो रहेगा √3/2 और y हो जाएगा -12. अब देखो x और y के वैल्यू मिल गए, तो नेक्स्ट फ्रेम में हम बाकी के जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके वैल्यूज क्या आते हैं फॉर द एंगल 330 डिग्री, वो देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन. और डेफिनेशन आपको पता है क्या है, cos थीटा इज x/r एंड sin थीटा इज y/r. ओके, नाउ सी x इज √3/2 एंड y इज -12. तो बाय डेफिनेशन cos थीटा होता है x/r, so your cos थीटा is 330 degrees, x है √3/2 and r is 1, so cos 330 degrees आएगा √3/2. then sin theta is y/r, so sin 330 degree is y is -12 by r is 1, so sin 330 degree is -12. ओके, इसके बाद tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, so tan 330 डिग्री is sin 330 डिग्री अपॉन cos 330 डिग्री. sin 330 degree is -12 and cos 330 degree is √3/2. is 2 cancel, so tan 330 degree is -1/√3. next is cot theta is 1 upon tan theta, so cot 330 degree is 1 upon tan 330 degrees, which is 1 upon -1/√3. 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 और माइनस साइन में पड़ जाएगा, सो cot 330 डिग्री इज -√3. नेक्स्ट इज sec theta is 1 upon cos theta, so sec 330 degree is 1 upon cos 330 degrees, and cos 330 degrees is nothing but √3/2, और √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3. So sec 330 degree is 2/√3. Next is cosec theta is 1 upon sin theta. So cosec 330 degree is 1 upon sin 330 degree. Sin 330 degree is -12. इसका रेसिप्रोकल होगा -2. So cos 330 degree is -2. Okay. अब देखो पिछले फ्रेम में भी स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द एंगल हैविंग मेजरमेंट 330 डिग्री इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. अब फोर्थ क्वाड्रेंट के और दो एंगल्स हैं 300 डिग्री और 315 डिग्री. अब जब एंगल 300 डिग्री की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ट्रायंगल तैयार होगा, ओके, तो ये एंगल 60 डिग्री आएगा, सो ऑब्वियसली दिस विल बी 30 डिग्री का एंगल. सो अगेन दिस ट्रायंगल इज 30 60 90 ट्रायंगल. यहाँ पे अब जो x है इट इज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो x आएगा हाफ और y आएगा √3/2, और दिस पॉइंट P लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो y नेगेटिव रहेगा, x पॉजिटिव रहेगा. ओके, और जब हम 330 डिग्री एंगल के लिए हमने देखा तब वहां पर x √3/2 था और y -12 था. ओके, सो 300 डिग्री के लिए x इज हाफ, y इज -√3/2 एंड बाय डेफिनेशन cos थीटा इज x/r, sin थीटा इज y/r. अब जब बात हम 315 डिग्री एंगल की करेंगे तो यहां पर जो एंगल जनरेट होगा वो 45 डिग्री का एंगल आएगा. सो 315 डिग्री के लिए जो ट्रायंगल तैयार होगा वो 45 45 90 ट्रायंगल तैयार होगा, जिसमें x जो रहेगा वो 1/√2 रहेगा और y भी 1/√2 रहेगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट होने की वजह से y रहेगा नेगेटिव. ओके, सो फिर 315 डिग्री एंगल के लिए
x is 1 by root 2, y is minus 1 by root 2, and again by definition cos theta is x by r, y is sin theta is y by r. So इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द एंगल हैविंग मेजरमेंट 300 डिग्री और 315 डिग्री सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अब देखो यहाँ पर 4 पार्ट्स हमने देखे टोटल. पहले पार्ट में एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देखा, सेकंड पार्ट में एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट देखा, देन थर्ड पार्ट में एंगल्स इन थर्ड क्वाड्रेंट देखा, और ये फोर्थ पार्ट में हमने एंगल्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट देखा. अब इसका ये मतलब नहीं कि 300 डिग्री तक ही सीमित है एंगल. ओके, हम पूरा कंप्लीट रोटेशन करके वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा सकते हैं. तो यहाँ पर अब जो एंगल आएंगे वो 390 डिग्री, 420 डिग्री, ओके, ये आएंगे, बराबर है. फिर आप सेकंड क्वाड्रेंट की ओर बढ़ते हो. ओके, तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री, फिर ये क्वाड्रेंट कवर करने पर 90 डिग्री ऐड करो, 450 डिग्री. तो उसके बाद के जो एंगल्स है 480 डिग्री, ओके, देन 495 डिग्री, 510 डिग्री, ये सब एंगल्स आ सकते हैं. ओके, एंगल्स का मेजरमेंट कितना भी बड़ा हो सकता है. सो उन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे देखना, तो हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे. इतना ही नहीं, हमने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स देखे, नेगेटिव एंगल्स के भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे देखना वो भी हम प्रैक्टिस सेट के कुछ सम्स में देखेंगे. ओके, देखो दिस टेबल शोज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री का एंगल टू 360 डिग्री का एंगल. अब देखो इसमें 0 डिग्री के एंगल के जो वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो सेम वैल्यूज रहेंगे 360 डिग्री एंगल के लिए. ओके, अब यहाँ पर देखो एंगल्स कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री. अब इसमें से मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं. 0 डिग्री टू 90 डिग्री के जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज याद रखने के लिए. अब देखो ट्रिक ये है कि साइन थीटा के लिए हम लोग वो ट्रिक याद रखेंगे. नंबर्स लो फ्रॉम 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4. ओके, इन नंबर्स को 4 से डिवाइड करो. 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4. ओके, और फिर इनका स्क्वायर रूट ले लो. Square root of 0/4, square root of 1/4, square root of 2/4, square root of 3/4 and square root of 4/4. So this will be 0 upon 4 क्या होता है 0. 0 upon any number is 0. 1 का square root 1, 4 का square root 2. This will be 2 1s are 2 4 under root of 1/2. 3 का square root root 3, 4 का square root 2 and 4 4 cancel होके 1 बचेगा. So finally 0 का स्क्वायर रूट 0, ये 1/2 जैसा कि वैसा. 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2, दिस इज रूट 3/2 और 1 का स्क्वायर रूट 1. सो अब देखो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज रूट 3/2 एंड साइन 90 इज 1. बराबर है. अब साइन थीटा के लिए आपने ये वैल्यूज याद रख लिए, तो कॉस थीटा के लिए ये रिवर्स ऑर्डर में चले जाएंगे. देखो 1 रूट 3/2, 1/√2, हाफ एंड 0. और साइन थीटा और कॉस थीटा पता चल गया तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है उनके वैल्यूज निकालना आसान है. बिकॉज tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा एंड cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा. ओके,